Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says, a single conservative force f of x acts on a particle that moves along the x-axis. The graph of the potential energy with x is given. At x equals to 5, the particle has a kinetic energy of 50 joule and its potential energy is related to position x as u equals to 15 plus x minus 3 the whole square joule, where x is in meter. Option A given है, the mechanical energy of system is 69 joule. Option B given है, the mechanical energy of system is 19 joule. Option C given है, at x equals to 3 the kinetic energy of particle is minimum. At option D given है, the maximum value of kinetic energy is 54 joule. So to understand the given question, we need to understand about the key concept regarding the slope of potential energy versus the displacement for a conservative force, right? So basically हमें equilibrium की बात करनी है यहाँ पे as a key concept. So for condition of equilibrium we know कि F net हम क्या लिखते हैं, that is equals to 0, that is net force acting on the body should be 0 for body to be remain in equilibrium, right? अब यहाँ पे basically we have three types of equilibrium. First equilibrium की अगर हम बात करें तो it is a stable equilibrium. Second equilibrium होता है हमारे पास unstable एंड थर्ड इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. ये तीनों ही इक्विलिब्रियम क्योंकि इन तीनों ही इक्विलिब्रियम पे एफ नेट की वैल्यू जीरो आती है, सो दैट्स द केस वी आर टेकिंग थ्री इक्विलिब्रियम एज स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल. ठीक है. अब अगर हम बात करें स्टेबल को, अनस्टेबल, न्यूट्रल को हम क्यों इक्विलिब्रियम मीन्स ये तीन कंडीशन कैसे आ रही हैं. सो फॉर दैट वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट the change in potential energy definition. Basically change for a small change in potential energy du, we know it is equals to negative of work done by conservative force. So small change in potential energy corresponds to small work done by conservative force, and it has to be negative. अब यहाँ पे we can say du can be written as work done can be written as force into displacement. अब हम force और displacement को along x ही ले रहे हैं, so in that situation force और displacement के बीच का angle zero हो जाएगा, and we can write this as to be minus f dx, fx dx. ठीक. सो फ्रॉम दिस वी कैन से जो वैल्यू आएगी fx की, दैट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ du बाय dx. इसी तरीके से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स अलोंग y एंड z ऑल्सो. सो यहाँ पे अभी फिलहाल हमने वन डायमेंशनल के लिए ये चीज़ एनालाइज की है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं du बाई dx जो है बेसिकली इट इज़ द स्लोप, राइट. अगर हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करें, दैट इज u वर्सेस x, एंड वी हैव सम सॉर्ट ऑफ ग्राफ लाइक दिस. कुछ इस तरीके का ग्राफ है हमारे पास. सो इन दैट सिनेरियो वी कैन सी के अगर हम कोई दो पॉइंट यहाँ पे देखें एंड उनके लोकल एरियाज में, जैसे कि ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है. सो पॉइंट नंबर 1 के नेबरिंग पॉइंट्स को अगर हम कंसिडर करें, सो पॉइंट 1 के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज मिनिमम, एंड यहाँ पे जो कंडीशन फॉलो हो रही है दैट इज डी यू बाई डी एक्स जीरो है, यहाँ पे स्लोप जीरो है. सिमिलरली डी यू बाई डी एक्स यहाँ भी जीरो है, स्लोप जीरो है. and if slope is 0, that is what the condition के f भी 0 होगा, and that is the condition of stable, unstable and neutral. So first point जो हमने शो किया that is corresponding to stable equilibrium, second point is unstable equilibrium, थर्ड में we can see कि again slope is 0, du by dx is 0, और ये constant है, मतलब particle will be moving on a straight path. ठीक है. so ये point है हमारा थर्ड. so यहाँ पे भी we can see कि force is 0, so in that situation also it is a equilibrium and known as the neutral equilibrium. ठीक है. अब जो क्वेश्चन हमें गिवन है, लेट्स ट्राई टू एनालाइज दैट क्वेश्चन. हमें बोला जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमसे ऑप्शन में अगर हम देखें तो हमें द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 69 जूल बोल रहे हैं, एंड वी हैव बीन गिवन दैट के पोटेंशियल एनर्जी का हमें एक्स के साथ एक रिलेशन गिवन है, दैट इज यू इज इक्वल्स टू 15 प्लस एक्स माइनस 3 स्क्वायर, राइट. अगर हम बात करें मैकेनिकल एनर्जी की, सो मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट द टोटल एनर्जी, राइट. और टोटल एनर्जी विल बी इन व्हाट, टोटल एनर्जी इज नथिंग बट द सम ऑफ मैकेनिकल प्लस पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, राइट. और हमें x इक्वल्स टू 5 पर काइनेटिक एनर्जी गिवन है 50 जूल. सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, वी कैन से एट x इक्वल्स टू 50, x इक्वल्स टू 5 मीटर, वी कैन से टोटल मैकेनिकल एनर्जी, या फिर टोटल मैकेनिकली लिख देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी 50 गिवन है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी को x इक्वल्स टू 5 पे हम क्या देख सकते हैं, इट इज़ 19. सो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इट विल कम्स आउट टू बी 69
जूल। तो मैकेनिकल एनर्जी हमें मिल रही है ऑफ द सिस्टम इज 59 जूल, राइट। अब यहाँ पे वी कैन से कि फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा ये देख के करेक्ट हो रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन को हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की, एट x इक्वल्स टू 3 द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम। अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। एट x इक्वल्स टू 3 पे क्या हो रहा है, एट x इक्वल्स टू 3 पोटेंशियल एनर्जी हो रही है मिनिमम। क्यों मिनिमम हो रही है दैट वी विल डिस्कस। 15 प्लस ये टर्म हो जाएगा 0, राइट। तो हमेशा अगर हम देखें कोई भी वैल्यू ऑफ x के लिए हमें मिनिमम वैल्यू तो 15 मिलेगी मिलेगी, राइट। सो मिनिमम वैल्यू 15 मिलेगी, दैट मीन्स ये पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है। और यहाँ पे बोल रहा है वो काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है। एट x इक्वल्स टू 3 द काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। अगर पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल्स टू 3 पे मिनिमम है, इफ पोटेंशियल इफ u इज u मिनिमम, यानी पोटेंशियल एनर्जी अगर पोटेंशियल मिनिमम है, सो इन दैट केस काइनेटिक एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा यहाँ पे, क्योंकि टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहेगी। सो इन दैट सिचुएशन पोटेंशियल अगर मिनिमम है तो काइनेटिक को मैक्सिमम होना पड़ेगा। सो दिस ऑप्शन कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड। अब बात करते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 54 जूल। सो अब ये चेक कर लेते हैं 54 जूल आ रहा है या नहीं। यू मिनिमम तो हमें आया है कि 15 आया है, सो वी कैन से देयरफॉर, सो यहाँ पे हम कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी जो हमें मिली है 69 जूल विल बी इक्वल्स टू, हमें पूछा जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो इन दैट सिचुएशन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की क्या वैल्यू आ रही है, 69 माइनस ऑफ 15 विल बी 54 joule. So this is the also correct option given. So A and D is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.